Assalamualaikum class 8th. We are doing unit number 5, daffodils. We have read the poem, we have also done reference to the context, and we have done the explanation of 4 stanzas of the poem. Today I am going to start book exercise. See the page number 54. Today date is 13/8/2020. It's my 31st lecture and day is Thursday. So I have taken the topic figures of speech. So we have discussed about simile personification in the poem. Simile is used and personification is also used in the poem. These are called figures of speech or figurative language. I told you what is figurative language. Whenever you have to dress up your writing or you have to give some expression, feelings or emotions in your writing, we use these figures of speech. यानी हम figure of speech राइटिंग को ब्यूटीफाई करने के लिए या राइटिंग में एक्सप्रेशन या फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. इसका सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है. दीज फोर आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच एंड मोस्टली दीज फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन पोइम्स में हम ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, जिसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है एंड इमेजरी है. लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट वन इज सिमिली. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. So we use as or like in comparison of two ideas or two things. यानी हमने दो ideas को या two things को compare करना हो, एक दूसरे के साथ उसका मुआवजा करना हो या कंपैरिजन करना हो, तो हम as या like के साथ two things को जब हम compare करेंगे तो उसको हम simile कहेंगे. और ये बेसिकली टू डिसिमिलर थिंग्स होंगी. जिस तरह हमने पोइम में जो पोइट है उसने क्लाउड के साथ ने आपको कंपेयर किया हुआ है कि आई वंडर्ड एज आ क्लाउड, कि मैं एक बादल की तरह घूम रहा था. और इसी तरह जो डैफोडिल्स हैं उनको स्टार्स के साथ कंपेयर किया हुआ है कि द डैफोडिल्स आर शाइनिंग लाइक स्टार्स. और लाइक एंड एज जब भी सेंटेंस में आएगा वो सिमिली होगी, और इसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं. यानी इनडायरेक्टली टू things or two ideas are compared with each other. See the examples. Her eyes twinkled like stars. So like is written here. उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं. She was as busy as a bee. So as busy as a bee. We write as in this sentence. It is simile. कि वो एक बी की तरह बिज़ी है, इतनी बिज़ी है जितने कि जो शहद की मक्खी है वो मसरूफ़ होती है या वो बिज़ी होती है, इतनी वो मसरूफ़ है. So this is called simile whenever we write as and as or like in a sentence to compare two ideas or two things. It gives the expression of simile in writing. It is simile in figure of speech. See metaphor. If we write a comparison between two things and omit the word like, then we are using a metaphor. अगर हम as या like नहीं लिखेंगे किसी भी सेंटेंस में और डायरेक्टली टू थिंग्स को या टू आइडियाज़ को कंपेयर करेंगे, इट विल बी मेटाफर. सो इन मेटाफर वी डोंट राइट एज एंड लाइक. इट इज़ आल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. सिमिली और मेटाफर दोनों में हमने टू थिंग्स का या टू आइडियाज़ का कंपैरिजन करना है, लेकिन सिमिली में हम एज और लाइक लगाएंगे और मेटाफर में हम एज या लाइक नहीं लगाते. सी द एग्जाम्पल. ही प्रूव्ड आ लाइन इन द फाइट. सो आई डायरेक्टली राइट उसने वो जंग में अपने आप को शेर साबित किया है. सो डायरेक्टली ही इज़ कंपेयर्ड विद अ लाइन. हिज हार्ट इज़ रेड रोज. सो हिज हार्ट इज़ कंपेयर्ड विद रेड रोज. सो डायरेक्टली कंपेयर टू थिंग्स. दैट्स वाई इट्स मेटाफर. वी डोंट राइट एज एंड लाइक इन अ सेंटेंस. ओके. देन personification is I told you that if we give human characteristics to a non-living thing, it is called personification. See the definition. It is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities. यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ह्यूमन characteristics या qualities देंगे, it is called personification in figurative language. It is a technique that we give human characteristics to a non-living thing. See the example. The candle flame dancing in the dark. So flame is dancing. So flame is non-living thing or any object, and candle flame. That's why candle flame is personified as saying that it is dancing in the dark. यानी कैंडल फ्लेम जो है डार्कनेस में जो डांस कर रही है उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे.
The sunflowers nodded in the wind. So nodded is also a human characteristic to move their head or to bow their head. So nodded यानी नहीं में सर हिलाना, इसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। इसलिए सनफ्लावर्स को हमने पर्सोनीफाई किया है और ये पर्सोनिफिकेशन है nodded and danced in these sentences. I hope you have understand. In poem we have discussed that the daffodils are personified by saying that the daffodils are dancing in the breeze, and we also personified the waves. The waves are dancing with the daffodils, and the heart is also dancing with daffodils. So these three ideas are given in the poem as personification. Imagery. It is very important to understand what is imagery in figurative language. See the definition. Imagery is the construction of details used to create mental image. It is to create mental image in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste or sound. So whenever we read anything, it create an image or mental image in our mind. जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो जिसके बारे में हमने पहले जाना हुआ होता है या पहले हम उसके बारे में देख चुके होते हैं। सर डैफोडिल्स के बारे में जब डिस्क्रिप्शन दी गई या बताया गया तो हमारे माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट होता है कि डैफोडिल्स आर ग्रोन अंडर द ट्रीज beneath the lakes, beside the lakes and beneath the trees. So these are the mental image created in our mind, and there are different words are used to create mental images, which shows that whatever we are reading, it gives us idea what we are going to read. जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट होता है उसको इमेजरी कहते हैं। अगर मैं वर्ड बोलूँ एप्पल, तो एप्पल को से आपके माइंड में यानी आइडिया आ जाएगा कि मैं किस फ्रूट के बारे में बात कर रही हूँ। आपने एप्पल देखा हुआ है और आपको एप्पल का आइडिया है। इसी तरह जो भी वर्ड आपके माइंड में मेंटल इमेज या वो उस चीज़ का इमेज क्रिएट करेगा उसको इमेजरी बोलेंगे। ठीक है। इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर। यानी जो भी रीडर होगा उसके माइंड में जो मेंटल इमेज बनेगा उस किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको हम इमेजरी कहते हैं। थ्रू द विजुअल सेंस, यानी विजुअल यानी देख कर जो देखने की जो चीज़ है उसको विजुअल इमेजरी कहेंगे। सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड, यानी जितने भी वर्ड्स टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड से रिलेटेड होंगे ये हमारे माइंड में इमेजरी क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी। सो सी हाउ वी exemplify the imagery in any writing. विजुअल मीन्स देखना, यानी नज़र से देखने से जो इमेजरी क्रिएट होगी। विजुअल क्या है? ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा दरख्त हैं बहुत बड़े और जो तारीख जंगल में, इससे हमारे माइंड में विजुअल इमेजरी क्रिएट होगी कि बहुत बड़े और बहुत बड़ा दरख्त है और बहुत ज़्यादा घना एक जंगल है। जंगल के बारे में हमारे माइंड में इमेजरी क्रिएट होगी, उसको विजुअल इमेजरी कहेंगे। ऑडिटरी यानी सुनना। द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट, यानी पत्तों की जो आवाज़ है, पत्तों के हिलने की जो आवाज़ है। वी नो डैट हाउ वी कैन हेयर द रसलिंग ऑफ लीव्स, इट इज़ ऑडिटरी, यानी सुनने से रिलेटेड जो इमेजरी होगी उसे ऑडिटरी इमेजरी कहेंगे। स्मेल, सेंस ऑफ एप्पल्स, यानी एप्पल की जो खुशबू है उसकी जो सेंट है, सेंट ऑफ एप्पल्स, इससे स्मेल इमेजरी और स्मेल क्रिएट हो रही है। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, सो स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस इज क्रिएट द इमेजरी ऑफ टेस्ट। टच, ड्रैगिंग एंड रफ पाथ, यानी खुरदरा रास्ता है और रफ यानी अनइवन पाथ है, उसको टच इज द इमेजरी ऑफ टच। दीज आर द वर्ड्स आर द phrases are the ideas given in the writing that create the imagery in our mind, and there are 5 kind of imagery: visual, auditory, smell, taste and touch. I hope you have understand what is figure of speech. Figure of speech is used to dress up your writing. जब भी हम किसी भी चीज़ को इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें फीलिंग्स या इमोशंस जो है ऐड करना चाहते हैं तो हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। इसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी यूज़ करते हैं। इनके सिंपल अगर हम लिखते हैं तो वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती। अगर उसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज में या फिगर ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा जो है
पावरफुल हो जाएगी, वो उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं उसको लिखने के लिए। ये लिटरल लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्टेक्सुअल लैंग्वेज है, यानी ये लिटरल मीनिंग्स नहीं देते, यानी आम मीनिंग्स नहीं होते इनके मीनिंग्स जो आम वर्ड्स हैं उनसे चेंज होंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज और फिगर ऑफ स्पीच। नाउ सी टू क्वेश्चंस आर गिवन फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट इज इन डैफोडिल्स similes are used in stanza 1 and 2. Can you tell what two things are compared to in each of these stanzas? And question number C is pick out one example of personification from the poem. So 3 examples of personification is given. We have to write just one example. I have written the answers. Just see it. Question I have read. Just see the answer. In first stanza, simile lonely as a cloud is used. So in first line of the first stanza, the simile lonely as a cloud is written. The poet himself describes lonely as a cloud. यानी poet ने खुद को सिमिलाइज किया हुआ है, खुद को जो है कहा हुआ है कि वो ऐसे अकेला है जैसे कि एक क्लाउड होता है या बादल होता है। इन सेकेंड स्टैंजा सिमिली कंटिन्यूस एज द स्टार इज यूज्ड. The poet describes the endless row of daffodils as the shining stars on the Milky Way. So the daffodils are compared with stars. In these phrases, as is see lonely as a cloud and continuous as the star. So as and as is here. Indirect comparison of two things are mentioned here. That's why it's simile. कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन में जो एस के साथ कंपेयर किया गया है उसको हम सिमिली कहेंगे. That is the answer of question number 1. Question number 2. Pick out one example of personification from the poem. In this poem, daffodils are personified by saying that daffodils are dancing in the breeze. Dancing is human characteristics which are given to flowers. यानी daffodils को या flowers को जो dancing quality दी गई है, it is called personification. And the daffodils are personified in the poem by saying that the daffodils are dancing. I hope you have understand what is personification in the poem and what is simile used in the poem. It is important because you have to write reference to the context, paraphrasing, and moreover you have given a stanza and few questions related to the stanza. Any questions came from the stanza, यानी जो एक stanza दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपसे 3 questions पूछे हुए होंगे. जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में एक पैराग्राफ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही स्टैंजा होगा, उस स्टैंजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर एग्जाम. सो एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू. इवन the examiner can ask what is the simile used in the stanza or what are the personification used in this stanza. तो जो भी personification simile या कोई भी figurative language अगर उस stanza में है तो आपको वो जब तक समझ नहीं आएगी आप उसका आंसर नहीं लिख सकते. इसलिए आपने personification, simile, metaphor, imagery, each and every aspects of the poem you have to understand. आपने simile, metaphor, personification and imagery की definitions याद करनी है. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है. सिमिली में एस और लाइक आएगा और पर्सोनिफिकेशन में हम एस और लाइक नहीं लिखते हैं. और पोइम में भी कौन सी सिमिलीज यूज़ हुई हैं और किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया हुआ है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर नोटबुक and learn the figurative language. 4 figure of speech are given: simile, metaphor, personification and imagery. You have to learn the definition of all of these figure of speech. It is your work. Allah Hafiz.